Now let's see the next passage from the 2025 paper of CSET, right? So this is the passage, and on this passage there are two questions being asked, right? So what we will do, we will read the passage and we will try to understand it. Okay, देखो अगर passage एक बार समझ में आ गया, then it will be very easy to solve any question, right? Now each state in India, so they are talking about India, and in India they are talking about each state, okay, faces a distinct set of challenges regarding the impact of warming, right? So each state, right, what they are facing the challenge. So what is the challenge? Challenge is regarding impact of warming, related to warming, right? But also offer its own set of opportunity for reducing emission depending on its natural resource, right? तो पहले ये लाइन को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक, right? So एक तो हमने बोल दिया कि जो स्टेट है, right, they have a distinct set of challenge, right? So they have distinct set of challenge है. Similarly they also offer opportunity, right? So what is the opportunity? Challenges regarding warming आ गया, right? Opportunity for reducing emission, right? Opportunity में क्या है कि reduce करना है क्या? Emission, right? Depending on its natural resources, क्योंकि हर स्टेट के पास अपने अलग नेचुरल रिसोर्स होंगे, राइट? तो इतना समझ में आ गया, डायग्राम भी बना दिया, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल, नाउ दे आर गिविंग द एग्जांपल, कोस्टल स्टेट नीड टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट देयर शोर, राइट, फ्रॉम सी लेवल राइज, district that are drier need to prepare for variable monsoon precipitation, right? Himalayan region have their own unique challenge. Himalayan region की बात कर रहा है, they have their own unique challenge. And selected part of peninsular India and offshore area offer great opportunity. Opportunity आ गई है यहाँ पे for harnessing wind power. कहाँ पे? peninsular India में और offshore areas में, right? So what they in this, what the author is saying, the opportunity they are talking about, right? Harnessing wind power. These various aspect, right, challenges, right, and the opportunity need to be considered for developing clear and sustainable goal for the future, right? So ये सारे aspect consider करने हैं to develop a clear and sustainable goal for the future, right? समझ में आ गया क्या हो रहा है, राइट? ईच स्टेट है, उनके अलग अलग चैलेंजेस हैं एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं रिगार्डिंग एमिशन, एंड द चैलेंजेस आर रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग, राइट? सो कोस्टल एरिया के बारे में बोला उन्होंने, राइट, कि व्हाट दे हैव टू डू, एंड जो ड्रायर डिस्ट्रिक्ट है, राइट, सो व्हाट दे हैव टू डू रिगार्डिंग द मॉनसून प्रेसिपिटेशन. हिमालयन रीजन के यूनिक चैलेंजेस हैं, पेनिनसुलर इंडिया और ऑफशोर, वो अपॉर्चुनिटी बताई उनकी दैट दे कैन हार्नेस विंड पावर. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. Which one of the following statement best reflect the most logical, rational and pragmatic message conveyed by the author? So what is the message conveyed by the author? Okay. The mitigation and adaptation strategy to tackle the climate change is essentially the responsibility of each state, right? ये किसकी responsibility है? ये फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है ऑप्शन, that this is the responsibility of each state, right? वो स्टेट की बोल रहा है responsibility, right? So क्या ये सही है? What do you think? Is this correct or not? क्या लगता है आपको? देखो पैसेज में ऐसा नहीं बोला है कि this is the responsibility of state और center, right? पर यहां पे ये बोल रहा है essentially. So ये essentially इसको क्या बना रहा है? इसको रिजिड बना रहा है, इसको एक्सट्रीम बना रहा है, राइट? कि दिस इज द इसेंशियली द स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसेंशियली, है ना, सेंटर की नहीं है, राइट? पैसेज में ऐसा कोई डिस्कस भी नहीं किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी रॉन्ग. ओके, नाउ सेकंड, इंडिया इज टू डाइवर्स टू इंप्लीमेंट एनी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी और प्रोग्राम टू एड्रेस टैकल द क्लाइमेट चेंज. ये बोल रहा है इंडिया बहुत डाइवर्स है, तो ऐसा कोई प्लान, है ना, बना ही नहीं सकते. दिस इज नेगेटिव टोन, राइट? पैसेज ऐसा नहीं बोल रहा है, पैसेज बोल रहा है कि आपको ये जो है चीजें कंसिडर करनी है, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. Second also. Now third, it is basically the responsibility of the union government. Again he is saying basically
हियर ही वाज सेइंग इसेंशियली, यहाँ पे बोल रहा है बेसिकली द रेस्पॉन्स की यूनियन गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंप्लीमेंट द क्लाइमेट एक्शन प्लान एंड एंश्योर नेट जीरो एमिशन, राइट। सो दैट्स व्हाई ये बेसिकली की वजह से ये भी गलत हो जाएगा, और ऐसा यूनियन की है रेस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेट की है ऐसा पैसेज में कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है ना, कोई हिंट नहीं दिया गया, राइट। Now, fourth, India need to formulate effective climate change mitigation and adaptation strategy at state, regional level, right? So this is correct. क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि हर स्टेट के अपना है, तो one size fit for all अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेट लेवल पे होगा तो बेटर है, राइट। So this is correct. India need to formulate mitigation adaptation strategy at the state, regional level पे होना चाहिए, right? So this is the मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर, है ना, कि हर स्टेट का अलग अलग है, तो स्टेट लेवल पे होगा, दैट विल बी गुड। पर यहाँ पे भी स्टेट था, पर यहाँ पे हमने इसको क्यों कर दिया, यहाँ पे क्योंकि आ गया इसेंशियली द रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ये एक्सट्रीम वर्ड यूज हो गया, इसलिए हमने इसको नहीं कंसिडर किया, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस, ओके। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ अब सेम पैसेज पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं, दिस वन, राइट। सो इन दिस we have to find the assumption. So what is the assumptions, right? Assumptions क्या क्या है, बस देखते हैं। green energy production can be linked to integrated with climate change mitigation and adaptation strategy, right? तो green energy का production जो है, जैसे वहां पे एग्जाम्पल भी दिया है, wind energy, right? So that is a green energy, right? wind energy, so that can be linked, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ना। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन क्या है, अपॉर्चुनिटी है। ऑथर दोनों चीज की बात कर रहे हैं, राइट। वो बात क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी की भी बात कर रहा है, चैलेंज की भी बात कर रहा है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी, राइट। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू और इंटीग्रेटेड विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी। सो दिस इज करेक्ट, राइट। तो सही है ना, क्योंकि जो मिटिगेशन और अडेप्टेशन की स्ट्रेटेजी होंगी उससे हम लिंक कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी को, वैसे ही करना है, उसने वही एग्जाम्पल भी दिए, राइट। नाउ सेकंड, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर। देखो जब भी ऐसा वर्ड आता है ना, लेस मोर, राइट, तो आपको ऐसा अंडरलाइन करना है ना, मोर सीवियर इन कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन, राइट। ये बोला क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कहां पे ज्यादा है, कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन में। पैसेज ने ऐसा कुछ बोला, पैसेज ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि कहां पे लेस है कहां पे मोर, राइट। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला ईच स्टेट की बात करिए कि सबके चैलेंजेस हैं, सबके पास अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो ऑथर ऐसा एज्यूम नहीं कर रहा है ना, अदरवाइज वो थोड़ा हिंट देता पैसेज में। सो दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। फर्स्ट अजम्पशन सही है कि ऑथर ऐसा चाह रहा है, इसलिए वो चैलेंजेस की भी बात कर रहा है, अपॉर्चुनिटी, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओके। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा दैट हाउ वी विल अप्रोच, है ना, और आंसर हमें कैसे मिलेंगे।